Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's start our today's topic. So today we will be discussing a small topic which is about financial markets. After going through the financial markets topic, we will take an example in which we will study all the concepts which I have been taught in the yesterday's class and this financial market class. So both the concepts will be included in the example that we are taking after this topic. So understand this. In the previous classes, I have told you about securities. What are the securities? As the name suggests, this is a person and this is some institution. This institution wants some money to expand the business. We are keen to making some lucrative profits. We have 1 crore of rupees. तो ये 1 crore of rupees ऐसे ही रखे रहेंगे. इससे अच्छा we will invest in some institution and we will get a fixed interest per year, and after the expiry of a definite time, we will get our principal back. So this is more lucrative to invest in something. Institution wants money, we have money, we will give our money to the institution. The institution as a security will provide us with certain paper, financial paper. This is called security. What is it backing? Is it backing the security of our 1 crore rupees that we have deposited to this institution? So this is nothing but security. ठीक है? So it is more of a tradable instrument. कैसा इंस्ट्रूमेंट है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. नाउ वी हैव अकाउंट स्टेटमेंट. आप सबको पता है अकाउंट स्टेटमेंट क्या होती है? देखिए, व्हेन यू ओपन अ बैंक अकाउंट, आप क्या करते हो? अपने पापा के साथ जाते हो बैंक में, बैंक अकाउंट अपना ओपन करते हो एंड द बैंक इन रिटर्न विल गिव यू अ रिसीट. कैसे रिसीट? जो भी पासबुक होती है या जो आपकी एटीएम की कॉपी होती है वो सब देगा आपको. सो दिस इज कॉल्ड अकाउंट स्टेटमेंट. नाउ द बैंक्स आर ऑल्सो गिविंग इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट होल्डर्स. पर ईयरली कुछ देते हैं वो, तभी तो आप जाके बैंक में अपने रुपए जमा करते हो. So this is called account statement. Now this account statement you can't pass on to others. It means if I have a bank account statement of my own name and I want to trade this bank account statement to my father or to my best friend. So no, that is not tradable. So bank account statement is not tradable. ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. दिस इज ओनली अ रियल लाइफ एग्जांपल, बट दीज टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर ट्रेडेबल. सो ये था सिक्योरिटी का, मैंने पहले ही बता रखा है. नाउ आता है फाइनेंशियल मार्केट्स में. फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म. मार्केट मतलब क्या है? मार्केट प्लेटफॉर्म होता है. चाहे सब्जी बेच लो, चाहे फ्रूट्स बेच लो, चाहे खिलौने बेच लो, चाहे सिक्योरिटीज बेच लो. सो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म that is enabling buyers and sellers on a daily basis to trade securities or assets. So this is the full statement of what constitutes a financial market. हिंदी भाषा में क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है. यहाँ से आ रहे हैं सेलर्स. क्या है इनके पास? डिफरेंट सिक्योरिटीज और असेट्स. यहाँ से कौन आ रहा है? बायर्स. एंड दे आर trading on a daily basis. So this is financial market. Now there are two types of financial market. And further these two are subcategorized into primary as well as secondary market. So this is also primary and secondary, which is not important from our exam point of view, and this is relevant with our exam point of view, primary and secondary. So now now what are the
characteristics of these two markets. देखिए, this is the highly liquid, less risky market. Why it is less risky? Because only the big corporates, the central banks, the scheduled commercial banks only operate in this money markets. और क्या करते हैं वो इधर आगे? They trade securities or they take instruments which are generally debt instruments. We have learned in previous classes that securities can be of two types, equity as well as debt securities. Equity represents ownership of a company or a firm. Debt, full form debentures, is debt securities, DEBT. ठीक है, डेट मतलब क्या होता है? उधारी. सो हमने किसी से उधारी लिया है, ये वैसे सिक्योरिटीज है. एंड इक्विटी रिप्रेजेंट्स ओनरशिप. So in money market, basically we trade debt instruments. Only big corporates, central banks, and these all kinds of institutions which have a large pool of money, they can only trade in money market. That's why it is less risky, and that's why because they have ample amount of money, it is highly liquid. अब जब भी जाओगे मनी मार्केट में, you can have your debt securities. बहुत सारा पैसा आपको as a debt, as a loan मिल जाएगा. So this is money market. Now coming here, it is kind of more risky. And it deals with both debt and equity market. And here all kinds of traders, it means sellers or buyers, can trade in these securities. Understood? Now primary and secondary market in the capital market is also important. In primary market, the securities are made. It means the maiden securities are traded in the primary market whenever a company issues IPO, initial public offering. The aspirants which are playing in Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange, they knew all these terms. IPO जब भी कंपनी देगी तो वो जाएगी कैपिटल मार्केट में, प्राइमरी मार्केट. ठीक है. Whenever there is enlistment of a company, unlisted company, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कहीं भी जैसे ही वो लिस्ट करवा देगी, then he will generate IPOs, and these IPOs will only be given to the shareholders in capital market, in primary market. Understood? So primary market में which players are involved? The company which is issuing share and the buyers. अब ये buyers कोई भी हो सकता है, because I have told you the characteristics of capital market. Any trader can trade in debt and equity securities in the capital market. Understood? Now these buyers have initial public offering, but now one of these buyers which has initial public offerings require money because his daughter is getting married next year. So he wants to sell this IPO. Now he can't sell this IPO to the company. Now he will go to the secondary market, and here there are lot of buyers and sellers. So trade will happen in between the individuals itself. Understood? IPO यहाँ जनरेट करेगा. In IPO, in primary market, the company is involved. Now in secondary market, these buyers and sellers will trade the securities of this company among themselves, and this company is not getting involved in further transaction in the secondary market. So this was whole of concept of capital market and primary market. Now there is another market that is called government securities market.
जिसको शॉर्ट फॉर्म में जी सैक भी बोलते हैं। नाउ दिस टॉपिक वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, और ये भी इसी फाइनेंशियल मार्केट का एक्सटेंशन है, बस एक प्रीफिक्स ऐड हो गया है गवर्नमेंट। इट मीन्स ऑल द सिक्योरिटीज विच आर गिवन बाय किसका है, गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट के द्वारा, ऑफ कोर्सली गवर्नमेंट के द्वारा। सो ऑल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विल बी ट्रेडेड ऑन अनदर प्लेटफॉर्म। नाउ ये भी 4 प्रकार की होती है, 1 2 3 4। ट्रेजरी, चलो अगली क्लास में बताऊंगा, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 4 तरह की होती है, तो ये नेक्स्ट में ही बताएंगे। अब हमारे पास 2 कंसेप्ट बच जाते हैं, और वो 2 कंसेप्ट हम एग्जाम्पल के साथ ही देखते हैं। सो फर्स्ट ऑब्जर्व दिस। अच्छा, इसके एग्जांपल्स थोड़े आपको चाहिए तो कैपिटल मार्केट के तो जो भी शेयर्स इशू होते हैं ऑन द डेली बेसिस, चाहे आप इन्फोसिस का मान लीजिए, अभी फ़िलहाल में जोमेटो का IPO आया है, तो वो सब कैपिटल मार्केट्स में आ जाएंगे। एंड मनी मार्केट में कौन से आएंगे, मनी मार्केट में आएंगे कॉल मनी, जो बैंक्स बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, ओवरनाइट लोन्स लेते हैं, कॉल मनी आ जाएगा, रेपोज आ जाएंगे। तो दीज ऑल काइंड ऑफ एग्जांपल आर ऑफ प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कोई अच्छा सा नाम बताइए, क्या हो सकता है। पोपरा रखते हैं। पोपरा प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी बनाता है, खिलौने बनाता है, फिसल पट्टी बनाता है, प्ले स्कूल फिसल पट्टी, ठीक है, स्लाइड्स बनाता है। आई एम मिस्टर एक्स, ठीक है। नाउ आई एम द एंटरप्रेन्योर। एक्स नाम से अगर आपको दिक्कत हो रही है, मिटा देंगे एक्स नाम, वाई रख लेंगे, अंडरस्टूड। एक्स नाम से बहुतों को ध्यान में आ गया वो कुछ ना कुछ। सो वाई इज द एंटरप्रेन्योर एंड ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ कंपनी पोपरा प्राइवेट लिमिटेड विच इज मैन्युफैक्चरिंग फिसल पट्टी ऑफ प्ले स्कूल और किंडरगार्टन। नाउ बैलेंस शीट होती है सबकी, ठीक है, तो हम बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ। I have 1 crore of rupees and I want to start Popra Private Limited. So I will open a bank account in the name of Popra Private Limited and I will give 1 crore rupees to this bank account. So to the company, this is the balance sheet of company. So the money which is coming in is my asset. So cash worth rupees 1 crore. What is the liability of the company? देखिए, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है, the moment I started Popra Private Limited, this has been registered as a legal person under Companies Act of 2013. It means this company can sue any person or can be sued by any person. इसका मतलब ये एक पर्सन है, जीता जागता इंसान ही है इन द आइज ऑफ द इकोनॉमी। सो किसी को आप अगर उधारी दे रहे हो 1 करोड़ रुपए की, तो वो क्या देगी, हमें सिक्योरिटीज देगी। इट विल गिव अस अ पेपर in which it is written that 100% of the shares of Popra Private Limited is given to person Y. So this thing is, यहाँ लिखेंगे कैश ऑफ ओनर या मनी ऑफ ओनर, कितनी है 1 करोड़, बिकॉज 100% ऑफ द शेयर
this legal person पोपरा प्राइवेट लिमिटेड विल गिव टू वाई एज अ स्लिप। तो ये हो गया। नाउ टू इंक्रीज अवर बिजनेस, टू एक्सपेंड अवर बिजनेस, पोपरा प्राइवेट लिमिटेड wants some more money, so Popra Private Limited goes to some bank. This is not important, ये बस अभी मिटा दूंगा मैं थोड़ा। This is bank's balance sheet. Popra Private Limited requested 1 crore or 2 crore rupees from the bank, so 2 crore rupees हमारे पास आ गए on the asset side, understood? नाउ दिस, ये क्या आ जाएगा, बैंक्स मनी, क्योंकि बैंक ने हमें प्रोवाइड किया है। सो बैंक को हम कोई तो अपनी मॉर्टगेज रख देंगे, या तो जो हमारी बिल्डिंग्स होगी वो मॉर्टगेज रख देंगे, या किसी फॉर्म में, एक पेपर की फॉर्म में, सिक्योरिटी की फॉर्म में हम बैंक को दे देंगे। ठीक है, कि हमने आपसे 2 करोड़ लोन लिया है, हम आपको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द टेन्योर वी विल गिव यू योर प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज 2 करोड़। सो वी हैव नाउ अ लायबिलिटी ऑफ 2 करोड़ ऑफ बैंक रुपीज, अंडरस्टूड? नाउ वी वांट टू एक्सपेंड आवर बिजनेस मोर, बट बैंक विल नॉट प्रोवाइड अस फर्दर लोन। क्यों? बिकॉज दिस इज आवर कैपेसिटी ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, बिकॉज only these much assets the company owns by till now, understood? So there is another method. What is that method? Now we will go to the market कैसी, जो भी रिटेलर्स होते हैं, बिग लैंडलॉर्ड्स मान लीजिए, इंडस्ट्रियलिस्ट मान लीजिए, कंपनीज के ओनर मान लीजिए, तो ऐसे लोगों के पास हम गए एंड वी इशूड अ स्लिप। अच्छा, तो ये बैंक अकाउंट का मैंने क्यों बनाया था? बैंक्स विल गिव यू 2 करोड़ ऑफ रुपीज, सो 2 करोड़ रुपीज इज द असेट ऑफ बैंक। व्हाई? बिकॉज दिस 2 करोड़ रुपीज विल जनरेट इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर 5 ईयर्स का ये डील है लोन की, सो at the end of 5 years, every year we will have some income on 2 crore, and at the end of 5 years we will have our 2 crores back. So this is the asset of the bank, 2 crore. But here we have assets of 2 crore, but simultaneously we have to give banks money back after 5 years. तो liabilities में बैंक का रुपीज़ 2 करोड़। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल ऐसा नहीं आएगा, बट दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एक बार आपने एग्जाम्पल समझ लिया, उसके बाद आपको बार बार ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट्स जैसे ही क्लियर हो जाते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसमें रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो इसका इतना ही काम था। नाउ वी विल गो टू द रिटेलर्स टू एक्सपेंड आवर बिजनेस। दिस इज पोपरा, दीज आर, मान लीजिए ₹100 वी आर टेकिंग फ्रॉम 1 लाख इन्वेस्टर्स। ऐसे 1 लाख इन्वेस्टर से हमने 100 रुपये ले लिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कैश ऑफ 1 करोड़, एंड हियर वी हैव इशूड बॉन्ड्स ऑफ 1 करोड़। यहाँ आप, अगर आप नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो यहाँ 2 स्टार लगा दीजिए। बॉन्ड्स कंसेप्ट एंड दिस इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ मनी, ये जैसे ही एग्जाम्पल खत्म होगा उसके बाद हम ले लेंगे, तो तब वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अंडरस्टूड? कि एज सून एज द पोपरा प्राइवेट लिमिटेड गोज टू द मार्केट टू द रिटेलर्स टू प्रोक्योर सम मोर मनी बाय इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स, तो वो चीज़, बॉन्ड्स का कंसेप्ट अभी इसी के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड? सो नाउ this is asset and liabilities, both should be equal, 2 3 4 4 crore 2 3 4 4 crore, understood? Now the Popra Private Limited converted this asset to the more useful capital, like cash की जगह यहाँ इससे एक बिल्डिंग बना दी, इससे एक दूसरी बिल्डिंग बना दी, इससे एक मशीन बना दी। नाउ पोपरा प्राइवेट लिमिटेड इज फंक्शनिंग एट इट्स फुल कैपेसिटी एंड इज जनरेटिंग ह्यूज प्रॉफिट। अंडरस्टूड? नाउ जैसे ही आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट
अर्न करने लग जाती है, देयर इज शेयर प्राइस एप्रिसिएशन। क्या होता है ये? मैंने बताया था ओनर की मनी, ओनर के पास 100% ओनरशिप है अभी, और इसके पास मान लीजिए 1,00,000 शेयर्स हैं 100 के। इसके पास मान लीजिए जब ये हमने वाई ने 1 करोड़ इसको दिए तो हमने बताया था ना, स्लिप दी, तो इसमें लिखा हुआ है कि 100 रुपए के 1,00,000 शेयर्स मैं देती हूँ वाई को, 1 करोड़ हो गए, तो डील इक्वल हो गई कि तुमने मुझे मनी दी, मैंने तुम्हें सिक्योरिटी दे दी। नाउ दीज 1,00,000 शेयर्स of rupees 100, there is a share price appreciation in it as soon as this Popra Private Limited will incur heavy profit. क्यों? Because more and more persons want to invest in this company, want to take ownership of this company, चाहे एक ही शेयर मिल जाए 100 का, क्योंकि अगले 5-6 सालों में by seeing the graph of the प्रॉफिट ऑफ द पोपरा प्राइवेट लिमिटेड, 5-6 सालों में इसकी शेयर की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि ये 100 रुपये का शेयर बाद में 10,000 में बिकेगा। सो एवरीथिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम विल रन ऑन एस्टिमेशन और स्पेक्यूलेशन, ये आप ध्यान रखिए। सो हम थे, जैसे ही इसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा सो देर इज शेयर प्राइस एप्रिसिएशन। इसका मतलब ये जो 1 करोड़ रुपए ना, ये 2, 3, 4 करोड़ हो जाएंगे इन द नियर फ्यूचर एज सुन एज पोपरा प्राइवेट लिमिटेड विल स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू और स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट। सो ओनर सारा प्रॉफिट ले जाएगा जितना भी होगा। कैसे? क्योंकि उसके शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन हो जाएगा खुद ही, जैसे ये प्रॉफिट कमाने लगेगी। इनको बॉन्ड्स वालों को मैंने क्या बोलता, इसको इंटरेस्ट मिलेगा। Those who are holding debt securities will gain interest. Those who are the owners of the company will gain profit. शेयर प्राइस अप्रिशिएशन भी उन्हीं में होगा, इनमें नहीं होगा। इनको फिक्स्ड एक इंटरेस्ट ईयर पर ईयर मिलता रहेगा। Now this is called equity and this is called डेट और डिवेंचर्स। सो ये था सिक्योरिटी का एग्जांपल। नाउ जैसे ही कंपनी रिटेलर्स के पास गई टू इशू बॉन्ड्स, डेट इज नथिंग बट आईपीओज जनरेशन। कैपिटल मार्केट में जाएगी प्राइमरी मार्केट के पास। मान लीजिए कंपनी हैज़ पोपरा प्राइवेट लिमिटेड हैज़ इशूड सम शेयर्स, ये 100 रुपये के 1,00,000 पर्सन्स को शेयर दे दिए ना। वापस से इन 1,00,000 जितने भी आदमी हैं इनमें से एक के बेटे की शादी थी, सो ही वांट सम मनी, सो बाय सेलिंग दिस बॉन्ड ही विल गेट मनी। तो कहाँ करेगा? वापस कंपनी को सेल करेगा? नहीं, कहाँ जाएगा? secondary market. It means it will get traded, the debt security will be getting traded among individuals. Understood? So ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ चलते हैं इस पॉइंट पे। एब्जॉर्ब दिस। अब बारी आ जाती है ये चीज़ करी कैसे कंपनी ने। This is Popra Private Limited. It went to market area. Market area means जैसे ही इकोनॉमी में मार्केट एरिया आ जाता है, इसका मतलब होता है जो भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, द बैंक्स विच आर वी डीलिंग विद ऑन डे टू डे बेसिस, ICI, SBI, PNB, SBI. So these banks, we are putting money in these banks and these banks are giving us some interest. तभी तो हम उनमें मनी रख रहे हैं, नहीं तो बैंक में क्यों मनी रखेंगे? दो ही कारण है, एक तो द
अफ्रेडनेस ऑफ थेफ्ट, एंड सेकंड इज दे आर गिविंग अ सम इंटरेस्ट। इसका मतलब आपके अकाउंट में अगर 1 करोड़ है तो पर ईयर बैंक इज गिविंग यू सम इंटरेस्ट, मान लीजिए 9% का है। सो मार्केट और इंटरेस्ट रेट, बैंक इंटरेस्ट रेट इज अप्रोक्सीमेटली 9%. Now Popra Private Limited wants individuals, wants residents, citizens to invest the people's respective people's money in his bank account. इस पोपरा प्राइवेट लिमिटेड को अब रुपए चाहिए, फाइनेंस चाहिए. So what strategy should Popra Private Limited adopt to overcome this 9% interest rate? Approximately, Popra Private Limited is alluring the citizens, that's dear citizens, come to my bank account, invest in my company's bank account and earn a profit of say 10%. It means if you go to the bank and invest your money there, you will get 9% per year, and if you come to us and invest your rupees in our bank account, we will give you an interest rate of 10% per annum. तो अगर आप if you are intelligent enough and your maths is good, you will invest in this or this, of course in Popra Private Limited. So now individual one will come to Popra Private Limited. उसने इन्वेस्ट कर दिए कितने, 100 रुपये बताए थे हमने, 1 लाख ऐसे I1 I2 I3 हो जाएंगे. उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए पोपरा प्राइवेट लिमिटेड में. इन रिटर्न पोपरा प्राइवेट लिमिटेड विल इशू अ स्लिप. इस स्लिप में क्या लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा पोपरा प्राइवेट लिमिटेड, अमाउंट 100 रुपीज़, इंटरेस्ट 10%. ओके, टाइम पीरियड 5 years. So after 5 years, after the maturity of this bond, this is nothing called but bond. So after maturity of the bond, per year, the Popra Private Limited will give 10% or 100 to I1, I2, I3 and all the 1 lakh I's. After the maturity, Popra Private Limited will give back the principal amount to all these 1 lakh investors. सो दिस इज नथिंग कॉल्ड बट बॉन्ड. ना एक छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है बॉन्ड का, वो आगे समझ लीजिए. सपोज इन 1 लाख आई को पोपरा प्राइवेट लिमिटेड ने बॉन्ड्स इशू कर दिए, बट नाउ ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, द बैंक्स इंक्रीज दिस इंटरेस्ट रेट टू 12%. अब क्या बोल रहे हैं बैंक्स, इसके लिए नहीं कर रहे. बैंक्स की इतनी छोटी सोच नहीं है कि वो पोपरा प्राइवेट लिमिटेड से खींचे अपनी तरफ इन्वेस्टमेंट, नहीं. दिस इज ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑन अ कंट्री एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस. द इंटरेस्ट रेट हैज बीन हाइटेंड बाई 3%, 12% पे लाके रोक दिया. नाउ ये जो इंडिविजुअल्स हैं 1 लाख, ये सोच रहे हैं भाई वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस पोपरा कंपनी and we have a return of 10%, but there is a more lucrative option in the market. What is that lucrative option? भाई ये पोपरा प्राइवेट लिमिटेड है, पहली बात तो इट इज प्राइवेट कंपनी, सो द रिस्क इज मोर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आवर इंटरेस्ट इज लेस. If we invest in the banks, then the risk is very less and the interest is more. So if you are a sane person, आप कहाँ अपना प्रिंसिपल इन्वेस्ट करना चाहोगे? अब ऑफकोर्सली यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन बैंक्स, बट यू आर होल्डिंग द स्लिप्स ऑफ दिस पोपरा प्राइवेट लिमिटेड एंड यू आर स्पेक्यूलेटिंग दैट, you are finding out that there is high probability that this bank's interest rate will go higher to 13 or 14% in near future. So firstly you want to invest in it, and secondly more and more people will buy these banks will invest in these banks account, and hence reducing your probability to sell this bond of Popra Private Limited. अगर सभी यही डिमांड कर रहे हैं तो आपके जो पास ये 100 रुपये का बॉन्ड है 10% इंटरेस्ट दे रहा है, ये कोई डिमांड ही नहीं कर रहा. जिसकी डिमांड मार्केट में कम है, द वन विच इज़
डिमांडेड इन मार्केट लेस, सो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। इसका मतलब वो कोई खरीदना ही नहीं चाहता। सो इफ़ यू गो विद दिस 100 रुपीज़ बॉन्ड ऑफ पोपरा प्राइवेट लिमिटेड टू मार्केट, अगर आप मार्केट में ले जाओगे और आप इसको 100 में बेचने का ट्राई करोगे तो कोई नहीं लेगा। वाई? बिकॉज डिमांड इज लेस, देयर इज मोर डिमांड इन इन्वेस्टिंग इन दिस बैंक्स अकाउंट। इतना समझ आ गया आपको? सो अब 100 में तो बिक नहीं रहा ये वाली चीज़, और आपको जल्दी से इससे छुटकारा पाना है और इसमें इन्वेस्ट करना है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि भाई 100 में नहीं ले रहे तो 95 में ले लो, 95 में भी नहीं ले रहे, अच्छा 90 में ले लो, 90 में नहीं ले रहे, अच्छा 80 में ले लो। सो इफ़ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स यू विल सी, अच्छा द प्राइस ऑफ दिस पोपरा प्राइवेट लिमिटेड इज 80। अभी हमको 80 में ये इन्वेस्टर इंडिविजुअल बेचने के लिए तैयार हो रहा है। अंडरस्टूड? द इंटरेस्ट रेट विच आई एम गेटिंग ऑन दिस पोपरा प्राइवेट लिमिटेड इज 10%। पर 10% किसका? ओरिजिनल प्राइस का। ये 80 तो ये इंडिविजुअल लगा रहा है, इसको कितना मिल रहा है? 10% ऑफ 100 ओरिजिनल वैल्यू का। इट मीन्स 10 रुपीज़ मिल रहा है। बट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 80 है या 100 है? इस इंडिविजुअल ने मार्केट से, पोपरा प्राइवेट लिमिटेड से 100 का लिया था, हम इस इंडिविजुअल से कितने का लेंगे? 80 का लेंगे। एंड ऑन 80 वी आर गेनिंग 10% इंटरेस्ट। सो हम 10 रुपये, 10% ऑफ 100 10 रुपीज़। तो मतलब हमारी यील्ड कितनी है? यील्ड क्या होता है अभी बता देता हूँ। हमारा प्रॉफिट कितना है? 10 on 80। इसका मतलब वी आर गेटिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 12.5% पर एनम। And the bank is giving, now this is speculation, 13 to 14% it will rise. Now the banks are giving us 12%, but as we have bought this bond of Popra Private Limited from individual one at rupees 80, so we are getting 12.5% interest. So this is nothing called but yield, and as we can analyze 12.5% is much more than 12%. So now we will take this bond or buy this bond from individual one कि भाई now we are getting profit. So this interest is nothing called but yield. तो अगर आपको अच्छे भाषा में या सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये आपको समझ में आ गया, ये yield थी। दिस वॉज बॉन्ड एंड दिस इज यील्ड। ठीक है, ये था 100, 10 की यील्ड दे रहा था। एज सून एज द बॉन्ड प्राइजेज विल राइज, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल अगर पहले आपको लेना है तो ये सुनिए, एज सून एज द बॉन्ड प्राइजेज विल फॉल, ये था लेवल प्राइस का, ये फॉल हो गया प्राइस का लेवल 80 आ गया। सो व्हाट इज राइजिंग? द यील्ड इज राइजिंग 10 से 12.5% यील्ड हैज़ बीन रिजन इन द एग्जाम्पल। अंडरस्टूड? इसी का उल्टा ले लेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड प्राइसेस हैज़ मेड हायर, बॉन्ड प्राइस हाई हो गए हैं, सो अब क्या होगा? यील्ड विल गेट लेस। थोड़ा इस पर अच्छे से दिमाग लगाना, ये एग्जांपल समझना, आपको पता चल जाएगा। इट मीन्स प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यील्ड ऑफ द बॉन्ड, जैसे कि हमने एग्जांपल में बताया। अगर जल्दी से आपको रिवाइज करना है तो वापस से मैं रिवाइज करा देता हूँ। पोपरा प्राइवेट लिमिटेड गई मार्केट में उसने देखा बैंक्स इंटरेस्ट रेट इज़ 9%, पोपरा को इन्वेस्टर्स ज़्यादा एल्योर करने थे, उसने अपनी बॉन्ड प्राइस 10% रख दी। ऑल द इन्वेस्टर्स, 1 लाख इन्वेस्टर्स विल कम टू इन्वेस्ट इन पोपरा एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। इसका मतलब 10% पर एनम ऑन ₹100 दे विल गेट इंटरेस्ट
सारे इंडिविजुअल्स ने देखा ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन इन आवर कंट्री द बैंक्स हैज़ अप देयर इंटरेस्ट रेट टू 12% एंड देयर इज अ स्पेकुलेशन दैट फर्दर इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट विल हैपन. सो इंडिविजुअल्स गेटिंग एंक्शियस, they want to gain some lucrative profits. So individuals with their this पोपरा प्राइवेट लिमिटेड बॉन्ड स्लिप जिसमें ये सब प्रोविजंस हैं वो गए मार्केट में उन्हें पता चला इसकी तो डिमांड ही नहीं है बिकॉज एवरीवन इज डिमांडिंग टू इन्वेस्ट इन दिस बैंक्स अकाउंट. सो इंडिविजुअल्स ने क्या किया, अपनी थोड़ी चालाकी लगाई. उन्होंने बोला 100 का नहीं 90 का ले लो, कोई नहीं माना. 95 का मान ले लो, कोई नहीं माना. 85 का ले लो, कोई नहीं माना. 80 का ले लो. सो वन ऑफ द इंडिविजुअल उसने क्या किया, अपना कैलकुलेटर उठाया, उसने मैथ्स लगाई, उसने क्या देखा कि 80 का मुझे प्राइस मिल रहा है, ठीक है. 10% ऑफ 100 रुपीज़ जो भी ओरिजिनल थी, इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% इज गेनिंग ऑन 100 रुपीज़. अंडरस्टूड. इसका मतलब मुझे 10 रुपये पर एनम मिल रहा है. बट मेरा शेयर जो मैंने प्राइस खरीदा है बॉन्ड का वो तो 80 है. तो हमने कर दिया कि हमको यील्ड या प्रॉफिट कितना हो रहा है. तो इट इज़ कमिंग आउट 12.5% एंड दिस 12.5% इज मच मोर देन 12%. इट मीन्स नाउ इट इज़ अ लुक्रेटिव प्रॉफिट. इसका मतलब एज सून एज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, 100 से 80 हो गई, द यील्ड इज गेटिंग बिगर एंड बिगर, 12 से 12.5%. सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. होप सो आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा. एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट अगर आपको समझ में आई या ना आई हो, कोई मायने ज़्यादा नहीं रखता क्योंकि आई हैव टॉट यू द थ्योरी इन प्रीवियस लेक्चर. दिस एग्जांपल इज़ फॉर मच मोर क्लैरिटी कि कौन सी इक्विटी सिक्योरिटीज़ होती हैं, द ओनरशिप डेट विच इज़ रिगार्डिंग द लोन्स. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. इफ़ योर कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.